over. So we have with us Mr. Lavi Nigam from Google. His address would be based on Google's AI ecosystem for cloud developers. We're glad to have you on board, sir. The time everything is getting set, I just like to point out that this session will provide an overview of Google's AI offerings for cloud developers, and that will let you learn about various tools for ML or AI on Google Cloud Platform. So I guess this should be one of the very engaging sessions after the lunch specifically. So just looking forward to it. Also to add on, in a while, after certain sessions, we would be joined by a guest of honor who'd be joining us virtually. And I hope that, all of you would love to interact with him. It's just a surprise as of now, but the wait should be worth it. Yeah, thank you. Okay, so we'll start the session. So, hi everyone, this is Lavi Nigam. I'm part of the ML engineering group at Vertex AI in Google. I'm happy to be here and thank you to Anubhav to set the precedence that we can talk in Hindi. तो ये सेशन थोड़ा सा मिक्स रहेगा हिंदी इंग्लिश मैं भोपाल से हूँ तो this is a great time to be here hosting this session. Like I said, थोड़ा सा मिक्स रहेगा हिंदी इंग्लिश but हमारा main focus of the session is to understand what technologies do we have from AI/ML from Google. As you all know that Google is one of the leading companies who do anything AI. And these are the products that you're already using. So we'll see how those products can be useful to you from a developer's point of view. And of course, I'm talking about Google Cloud perspective. There are also APIs outside of it, but we are specifically talking about Google AI. Before I go further, how many of you जिसने भी यहाँ पे AI/ML पे कुछ भी काम किया है? Raise your hands. Good. What about people at the back? Balcony wale? I don't see just one hand, two. कम जनता है AI/ML. Why is that so? Why are people not doing AI/ML stuff in Bhopal? Any specific reason? Yes. हाँ हाँ. अच्छा. I was asking why people are not doing AI/ML in Bhopal. Anybody? Any reason? Yeah. चिल्ला दो चिल्ला दो. हाँ आप यूज कर रहे हो? अच्छा नहीं मेरा क्वेश्चन था कि लोग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं बहुत कम हाथ उठे थे मेरा क्वेश्चन ये है कि लोग मशीन लर्निंग क्यों नहीं यूज कर रहे हैं कोई है यहाँ आंसर हाँ डिफिकल्ट है या टूल डिफिकल्ट है टेक्नोलॉजी डिफिकल्ट है विच मेक्स मोर सेंस टू लर्न इट राइट सो ठीक है वील ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द बेसिक्स सो इस पूरे सेशन में हम क्या सीखेंगे कि कौन से टूल्स हैं जो यू हैव टू फोकस टू बिल्ड योर पोर्टफोलियो अराउंड AI/ML एंड GCP and that's all the takeaway that you have to do right so technology थोड़ी सी tough है doesn't mean कि it's something you cannot do but हमारा main focus बस यही है कि कौन से वो tools हैं जो हम use कर सकते हैं but before I start उससे पहले हम एक छोटी सी surprise बात which is how many of you know about ChatGPT अब सबके हाथ खड़े हो गए सबने यूज किया है what is the equivalent of that ecosystem बार्ड किसी ने वो यूज किया है करा है किसी ने यूज सम ऑफ यू VPN लगा के US से nice so I'll show you a demo of that
I'll show you Bard, how it functions and all. हम उस पे बात करेंगे कि basically आपको as a developer क्या सोचना है. I'll show you how जो Bard जैसी technologies हैं या Chat GPT जैसी technologies हैं वो developers उसका क्या करेंगे. मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कि आप अपना काम कैसे automate करोगे या आपको कोड लिख के दे देगा, आप खुद क्या करोगे. मैं एक कंपनी के हम देखेंगे कि एक वर्टेक्स जैसे टूल में जब ये चीज़ें पब्लिश तो आप एज अ डेवलपर उसमें क्या कर सकते हो. सो जस्ट अ कैवियट कि मैं कुछ चीज़ें ऐसी दिखाऊंगा जो पब्लिश नहीं हुई हैं. सो मेक श्योर दैट यू आर नॉट टेकिंग फोटोज़, बट आप देखो, अपने आप को प्रिपेयर करो कि ये सब चीज़ें आने वाली हैं. तो आई होप एवरीबडी अग्रीज टू दिस, राइट. एंड आई यू एक्साइटेड टू सी बार्ड एंड अदर थिंग्स अराउंड जनरेटिव एआई. कोई मुझे बताएगा जनरेटिव एआई है क्या? एनीबडी? मतलब चैट जीपीटी तो सबने यूज, बट व्हाट इज दैट टेक्नोलॉजी? वो कर क्या रहा है, कैसे कर रहा है या कोई कुछ है लॉजिक बिहाइंड दैट? यस. हाँ, बट वो कैसे कर रहा है? इमेज का हम बाद में लेंगे, अभी सिर्फ टेक्स्ट टू टेक्स्ट का एग्जांपल लेते हैं. जैसे वो कोड जनरेट कर रहा है, राइट? या तुम उसको पोएम लिखने को बोलते हो तो पोएम बना देता है. कैसे बना रहा है वो? राइट. सो इन अ वेरी सिंपल टर्म, यस यू आर राइट. लाइक टेक्निकली इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट बहुत सिंपल एग्जांपल उसने बताया कि आप कुछ भी चीज लिखते हो, उसकी मोस्ट प्रोबेबल नेक्स्ट वर्ड इज द होल प्रीमाइस ऑफ एलएलएम. वही हो रहा है कि आप अगर पूरे इंटरनेट का टेक्स्ट किसी एल्गोरिथम को दे देते हो और उससे बोलते हो कि सारे पैटर्न सीख लो कि अगर एक वर्ड है उसका नेक्स्ट वर्ड क्या होना है, थिंग्स अराउंड दोज आर समथिंग जो एलएलएम्स कर रहे हैं पे, राइट. तो ये टेक्नोलॉजी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए सीखना. तो उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे, कुछ चीज़ें देखेंगे कि आपको एक्सेस कैसे मिलेगी उन सब चीज़ों की. बट given that you're going to go in your careers in data science, ML, if you do choose to, this is a very important technology for you. So let's start. All of these different use cases, I'll not go into much detail of it, but these are the different use cases जो आप ML use करके solve करते हो. For example, demand forecasting, customer segmentation. So pretty much अगर आप ये list देखो, and it's important you can take a snapshot of this. आप कोई भी app यूज़ करते हो इंटरनेट की, चाहे फ्लिपकार्ट, चाहे ज़ोमैटो, चाहे कोई भी जहाँ पे डेटा कलेक्ट होता है यूज़र का, आप देखोगे इसमें से सारे यूज़ केसेस वही यूज़ केसेस हैं जो यूज़ होते हैं फ्रॉम AIML. ये मैं स्लाइड इसलिए रखी थी कि अगर आप में से किसी को भी इंटरेस्ट हो ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने का, देन दैट इज़ व्हेन यू नो दैट यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग मशीन लर्निंग, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स डायरेक्टली ML रिलेटेड है. ठीक है. तो take a picture of this, go ahead, do a research around each and every keyword कि ये क्या चीज़ें हैं. But most importantly अगर आप देखो पहली demand forecasting, कोई मुझे example बता सकता है? demand forecasting का simple मतलब ये होता है demand को predict करना. ठीक है. कोई मुझे एक app का example देगा और बताएगा कहाँ use होता होगा ये, जो आप use कर रहे हो day on day basis? Amazon or Grofers, good. Ola, right? हाँ, correct. What else? Zomato में हाँ, correct, right? Sorry. Rapid, good example. So you get the idea, right? So demand forecasting is a very general problem, but you can see ki how most of the companies do the same problem, right? So again, if you want to work in some problems like this, you should know that AIML is the key area that you want to focus on. So what do Google Cloud offers AIML into that, right? So we have everything out of the box till DIY, which means you can do it on a bunch of tools that we'll talk about one by one. So this is the complete ecosystem at a very high level, what we have and what is that you can learn. Take a picture of this slide. The reason I say this is what you have to learn as a user or a developer, right? So if you're aiming to be, let's say, a software developer or data scientist, data engineers, this is the stack that you have to focus on if your focus is on Google Cloud, of course, right? So if you see on the top, these are industry vertical cases. For example, you have contact center API.
I'll give you the cool definitions of it so that it stays with you. Contact center AI is, imagine an automation where the whole call center is being automated, where there are no humans sitting and everything is being automated. So if somebody is submitting a user query and it is automatically being addressed, you get the answer. This is what the product contact center AI is. Then you have document AI. A very simple, cool example of it is, you know, all challans and invoices and all of those documents, right? What if you have to extract information out of it? So that is the product called as document AI. Again, these are all part of GCP. Then you have discovery AI, which is in a cool way saying, what if you want to do Google search on your documents, if you want to. And then the healthcare AI, which is the part. So this is the industry vertical. Now the second part of the stack is generative AI app builder. So just like I said, this is something which is not released. I will show you this in at least the one that I have access to. But what you're going to see, at least in the next 2 months, and Google I/O is coming around, so you'll see a lot of things around it. We'll have 3 different products that are coming. One is foundational models. The second is conversation AI. In a simple way, conversation AI is just like saying you have ChatGPT kind of a thing. And then you have enterprise search, which is Google search on steroids. So a much, much better version of search for your enterprise folks. Now these are 3 products which I said on AI. So something very similar to what you see in ChatGPT. If I have to ask a quick question, how many of you have used OpenAI API? Not the ChatGPT, but GPT 3.5. How many of you have used it? You? Who else? You have used? What have you done with that? So you wrote a code of it. Okay. Using the API or the ChatGPT? API. Good. Somebody here. What did you use for? LangChain. Okay. AutoGPT is most popular nowadays, and GitHub, it is in GitHub repositories, and I installed it and actually used that tool, and that's where I use अच्छा, it. you would play with it. Yeah. उसके अलावा कुछ नहीं किया? No. Okay, good. Anybody else? क्या कर रहे हैं भोपाल यार? Why are you guys not using OpenAI APIs? Not that I'll be happy, but at least there's somebody. What did you use? अच्छा, चैटबॉट बनाया. क्या करता है चैटबॉट? अच्छा, चैट जीपीटी जैसा. Okay, so you use the chat completion API या generative API? अच्छा. Something would say when I was a 3rd or 4th year. यहाँ पे कितने लोग हैं 4th year के? 3rd year? 2nd year? First year? First ज़्यादा हैं. 3rd और 4th वाले क्यों नहीं हैं? They don't care. तो और second वाले क्यों हैं? Why are so many people from 2nd year? अच्छा, ठीक है. So another thing is this slide. Again, take a screenshot. I'll not bore you with what each product does and all that, but take a screenshot. The reason is again same. This is the name of the technology that you probably would have to learn if you want to master doing AI/ML on GCP. So this is the whole stack. It starts with from the top, no code, low code workflow. We have something called as AutoML. In fact, let me ask you this. किसी को पता है यहाँ AutoML क्या होता है? What is AutoML? हाँ.
when you say module you mean model, right? अच्छा, हाँ, अच्छा, हम्म, ट्रेन करना पड़ेगा, करेक्ट? गिव इट अप फॉर हिम, दैट्स अ वेरी गुड आंसर. गुड. सो said, let me repeat, AutoML is just a fancy way of saying कि you don't build your own model, you ask Google to do it. So you take your data, you say, hey, I have these 10 cat images, I have these 10 dog images, throw that to the AutoML model, and then say, hey, give me a model that can do a classification. कि अगर कल को आपको कोई नई कैट या डॉग की इमेज देता है तो वो मॉडल आपको ऑटोमेटिकली बता देगा कि कहाँ पे कौन सी इमेज डॉग है, कौन सी कैट है. गिवन दैट एग्जाम्पल, कोई मुझे गूगल प्रोडक्ट बता सकता है जहाँ पे मॉडल यूज करके हम इमेज को क्लासिफाई करते हैं? क्लासिफाई इन अ वेरी सिंपल टर्म इज, अगर मैं एक कैट और डॉग की फोटो दूं तो मुझे मॉडल या एआई मॉडल बताए कि कौन सी कैट है, कौन सी डॉग है. गूगल लेंस, गूगल फोटोज. स्पेसिफिक एग्जाम्पल बताएगा कोई? फोटो में कहाँ यूज होता है? फेस रिकग्निशन, ओके गुड. व्हाट एल्स? चलो इधर से बताओ कोई. हाँ, सर्च में नहीं, अच्छा सर्च में या सेइंग क्लासिफिकेशन, ओके. करेक्ट, दिस इज द न्यू वन राइट, जो आजकल वो अपने आप ही क्लस्टर कर देता है कि ये पार्टी वाली, ये आपके ग्रुप वाली फोटोज, ये आपकी पुरानी फोटोज, ये आपके एक पर्सन के फेस से रिलेटेड फोटोज. बालकनी वाले कुछ और एग्जांपल्स दैट यू गाइस हैव? नहीं, हाँ, एआई, अच्छा, हाँ हाँ, करेक्ट. एक जो सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है recently introduced, and I think last year it got introduced, जिसमें वो फोटो ऑब्जेक्ट डिलीट कर देता है. Have you seen that? Right? Now the reason I'm saying all of this is because ये जो AutoML stack है, जो which is very powerful technology, उसमें अगर आप देखो vision, video, language, speech, translation, tables, forecast, tabnet, workflows. Specifically vision, video, language और speech. तो जो चीज़ें आप Google technologies में use करते हो वही powerful चीज़ें आपके backend में यहाँ पे हैं. So it makes more sense for you to know how to use that for any customer or any company, right? जब आप कल को काम करोगे, अगर आपको खुद का ऐसा कुछ बनाना है या किसी कंपनी को ऐसा बनाना है, तो वो ये टेक्नोलॉजीज डायरेक्ट कर सकती है. एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ कि आपको गूगल क्लाउड में अपना इन्वेस्ट करना चाहिए. इसलिए करना चाहिए क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज यहाँ आप सीखोगे वो चीज़ हैं जो बिलियंस ऑफ, ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जो बिलियंस ऑफ यूजर्स आर यूजिंग अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? इसीलिए इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक दैट इन्वेस्टमेंट एआईएमएल में, एटलीस्ट फ्रॉम दैट पॉइंट. सो वो सबसे ऊपर का नो कोड लो कोड है. नीचे फिर डेटा साइंस टूल किट है, ये भी अपने बहुत सारे टूल्स हैं. बिग क्वेरी है, क्लाउड स्टोरेज है, स्पार्क है. स्पार्क आई एम श्योर सम ऑफ यू मे नो. यहाँ पे कितने लोगों को बिग क्वेरी पता है? सम हैंड्स इन द बैक. कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट बिग क्वेरी इज? एमएल मॉडल इनबिल्ट. और क्या करता है, क्यों यूज करना चाहिए बिग क्वेरी? अच्छा, ओके. डेटा वेयरहाउस होता क्या है? राइट, करेक्ट. तो अगर बहुत सारा एंटरप्राइज आप सोच, जैसे उबर ही है, ओला है, आप सोच सकते हो कि उनके पास कितना डेटा आता है, कितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके का डेटा आता है. तब आप टेक्नोलॉजी यूज करते हो बिग क्वेरी जैसी, ताकि आप वो सारा डेटा एक तो स्टोर कर सको बैकएंड पे और फिर उसे क्वेरी कर सको, ताकि आप फास्ट एट द पेटाबाइट स्केल आप उसे क्वेरी कर सको. कोई एग्जांपल आप बताओगे बिग क्वेरी, नाउ दैट आई हैव शेयर्ड दिस एग्जांपल कि आप पेटाबाइट स्केल पे सर्च कर सकते हो, तो ये कहाँ यूज होता होगा गूगल में?
गूगल सर्च. एंड दैट इज ट्रू बिकॉज BigQuery जो प्रोडक्ट है वो आया था Dremel करके एक प्रोडक्ट से. सो आप कभी इसकी हिस्ट्री पढ़ोगे तो गूगल का एक प्रोडक्ट था Dremel, तो एक्चुअली सर्च के कोर में यूज होता था. तो आप सोच के देखो, जब आप गूगल में कुछ सर्च करते हो तो कितनी ज़्यादा इंडेक्सेस उसे सर्च करना पड़ता है आपको एक टॉप 10 रिजल्ट देने के लिए, राइट? और वो होता एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हैं. सेम टेक्नोलॉजी इज देयर इन BigQuery. तो अगर आपको बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रोज एंड कॉलम्स या आप मान लो पेटाबाइट स्केल का आपके पास डेटा है, तो आप BigQuery यूज करके उस डेटा को बहुत क्विकली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में सर्च कर सकते हो विदाउट ये सेटअप करे इंफ्रास्ट्रक्चर के. तो आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना. गूगल विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग ऑटोमेटिकली फॉर यू. तो अगर आप मुझसे पूछो एज अ सेकेंड ईयर कॉलेज ग्रेजुएट, बिकॉज मेजॉरिटी यहाँ वो हैं, मैं आपको कहूँगा कि आप BigQuery सीखो. BigQuery बहुत पावरफुल टूल है. हर क्लाउड में BigQuery जैसा एक टूल होता है. मैं आपको ये भी बता दूँ, AWS में भी है, Azure में भी है. नाम नहीं बताऊँगा, आपको सर्च कर लेना. बट अगर बिकॉज हम गूगल क्लाउड की बात कर रहे हैं, BigQuery इज़ वन ऑफ दोज टूल्स. और इसमें जनरली SQL ही यूज़ होती है. तो आप एनीवे SQL सीखोगे तो कोई नई चीज़ नहीं सीखना पड़ेगी आपको बहुत ज़्यादा. बट BigQuery इज़ अ टूल जहाँ पे आपको जनरली इन्वेस्ट करना चाहिए अपना टाइम. देन वी हैव द थर्ड विच इज़ द कस्टम वर्कफ्लो, जहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट, ट्रेन और डिप्लॉय कर सकते हो. अगेन दीज आर टेक्नोलॉजीज विच आर वेरी पावरफुल. हम बात करेंगे उन सारी टेक्नोलॉजीज़ की. और फिर सबसे लास्ट में आता है ML Ops. आप लोगों ने आज प्रेजेंटेशन में DevOps देखा था. कोई मुझे बता सकता है ML Ops क्या होगा? इफ़ यू क्या चीज़? डिप्लॉय मॉडल्स. ओके, गुड. So ML Ops is just like DevOps, not exactly, but in a very basic analogy. ML Ops और DevOps बहुत सेम चीज़ें हैं, बिकॉज वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सॉफ्टवेयर डिप्लॉय, आप एक मॉडल को डिप्लॉय करते हो. आप सोच के देखो, जब कोई बहुत बड़ा मॉडल बनता है, जैसे कि आपकी इमेज गूगल फोटोज़ में जब आप अपनी फ़ोटोज़ देखते हो और वो ऑटोमेटिकली क्लस्टर होती हैं, तो आप सोच के देखो बैक एंड पे कितनी प्रोसेसिंग होती होगी कि कोई एक मॉडल है वो प्रिडिक्ट करता है, फिर वो रीडिप्लॉय होता है और आपके पास एज अ अपडेटेड आपके लैपटॉप सॉरी आपके मोबाइल्स में आता है. तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इट इज़ बियॉन्ड दी मॉडलिंग पार्ट. मतलब वो सिर्फ मॉडल नहीं, बट ये भी कि आपका वो रीडिप्लॉय हो रहा है बार बार, इज़ व्हाट द होल प्रिसाइज प्रिंसिपल ऑफ ML Ops इज. ये अपने में बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है. अगेन सेकंड सजेशन फॉर मोस्ट ऑफ द सेकंड एंड थर्ड ईयर्स, बिकॉज फोर्थ ईयर तो अब हो गए सेट, उनका जो भी है दे हैव चोजन देयर लाइफ. फॉर पीपल हु आर इन सेकंड एंड थर्ड ईयर, आई वुड से इन्वेस्ट अगेन टाइम इन लर्निंग ML Ops. क्योंकि आज की डेट में जितनी भी कंपनीज हैं, एंड यू डोंट हैव टू टेक माई वर्ड फॉर इट, आप खुद जाना, आप सर्च करना मशीन लर्निंग और AI ML की जॉब्स में सबसे ज़्यादा क्या स्किल सेट मांग रहे हैं. You will hear this word often, which is either machine learning engineering or machine learning operation. So which makes sense ना, अगर आप second, third year में हो तो invest time in learning this. And I'm not forcing you to learn GCP ML Ops. ML Ops has nothing to do with GCP. ML Ops is a general concept, just like DevOps. वो आप किसी भी cloud में कर सकते हो, but of course ML Ops in Google Cloud is very easy to learn and very scalable in that sense. So I'll stop probably. Okay, so again, why Google Cloud? थोड़ी चीज़ें मैं पहले कवर कर चुका हूँ, but the most important 3 points that you have to keep in mind is first is access to Google continuously enhanced AI tools. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. There is no company on this earth जो AI पे इतना इन्वेस्टमेंट करती है compared to Google, and you use the product. So ऐसा नहीं है कि just a flap और ऐसे कुछ बोल रहे हैं वो. And all of that technology gets to Google Cloud. So it makes sense कि जो आप सेम चीज़ें यूज़ करते हो और आपने अपने आसपास देख रहे हो बिलियंस ऑफ यूज़र्स को यूज़ करते हुए, वही क्यों ना टेक्नोलॉजी सीखी जाए और वही टेक्नोलॉजी क्यों ना एंटरप्राइज को इम्प्लीमेंट करें. सो दैट इज़ वन. सेकेंड इज़ मेकिंग AI मोर एक्सेसिबल एंड यूजफुल. जितने भी टूल्स हैं जब आप सीखोगे, आप रियलाइज़ करोगे कि हाउ ईजी दे आर टू लर्न एंड हाउ स्केलेबल दे आर बिल्ड. देखो, गूगल का फिलॉसफी ना बड़ा सिंपल है प्रोडक्ट्स बनाने में. वो कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो कभी ये नहीं सोचते कि चलो बस बना देते हैं, फंक्शनैलिटी होनी चाहिए. वो ये सोचते हैं कि अगर मैं एक छोटी सी ऐप भी बना रहा हूँ, इट शुड नॉट क्रैश इवन इफ 1 बिलियन पीपल यूज़ इट.
बहुत सिंपल सा फिलॉसफी है. क्यों? बिकॉज एक्सेसिबिलिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन फंक्शनैलिटी. तभी आप चीज़ हमेशा नोट करोगे ना, आज मैं आपको बार्ड में भी दिखाऊंगा कि वाई दे वेटेड सो लॉन्ग टू कम आउट ऑफ समथिंग, जबकि फाउंडेशनल मॉडल जितने भी LLMs बन रहे हैं वो बने रिसर्च पे किसके हैं? एक पेपर के जो गूगल ने पब्लिश किया था. बट बिकॉज एक्सेसिबिलिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि हमें मेक श्योर करना है कि दुनिया में किसी की गूगल सर्च बंद ना हो, दुनिया में किसी का गूगल का फ़ोन बंद ना हो, एंड ऑल दी अदर प्रोडक्ट्स दैट यू सी. गूगल मैप्स इमेजिन करो, अगर आप गूगल मैप फ्रीक्वेंटली बंद होने लगा तो हाउ dissatisfied you will be, right, with the product. तो सेम फिलॉसफी उनके गूगल क्लाउड की टेक्नोलॉजीज में भी है. एंड द थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल AI, सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी. AI जैसे कि हम देख रहे हैं चैट GPT और कि हाउ डेट्रीमेंटल इट कैन बी समटाइम्स, तो ये एक फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है हमारी टेक्नोलॉजीज़ में. क्यों? अगेन फॉर द सेम रीज़न, राइट. हम नहीं चाहते लोग कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ गलत करें. तो गूगल सर्च पे भी आप देखोगे, आप गलत चीज़ें सर्च करोगे या कुछ ऐसी चीज़ें सर्च करोगे जो शायद गलत मिले, गूगल आपको हमेशा बोलता है ये चीज़ें कि देखो, बेटर टू गो टू अ डॉक्टर एंड आस्क दिस क्वेश्चन. या आप कोविड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हो तो पहले आप WHO की वेबसाइट पे जाओ. सो दैट इज़ इनबिल्ट इनटू एवरी प्रोडक्ट दैट वी बिल्ड. इसीलिए ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि गूगल क्लाउड में इन्वेस्ट करना क्यों इम्पॉर्टेंट है. सो आई विल स्किप टू कपल ऑफ द स्लाइड्स आप लोग को अवेलेबल हो जाएंगे एक्सेप्ट कपल ऑफ वीडियोज़. What I want to show you is couple of things, couple of products which are very interesting, at least from a third year and from a college perspective. क्यों? क्योंकि आप इनके product बना सकते हो. तो जब मैं आपको जो प्रोडक्ट्स दिखा रहा हूँ आप देखो और आप अपने दिमाग में सोचो कि मैं अपने कॉलेज के प्रोडक्ट में इसको कैसे यूज़ करूँगा. ठीक है? ओके. पहला प्रोडक्ट है AutoML विजन. तो हम AutoML की बात कर चुके हैं. AutoML वो टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपको मॉडलिंग नहीं करनी. इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेटा इंजीनियरिंग का काम नहीं करना, वो आपको फिर भी करना है, बट मॉडल का काम टेक केयर कर लेगा गूगल आपके लिए. इसमें आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं? ये आपको डेटा ऑगमेंटेशन देता है, विच मीन्स अगर आपके पास 10 इमेजेस हैं तो वो 10 के 100 इमेज करता है विद डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन. न्यूरल आर्किटेक्चर सर्च है जो इन अ वेरी सिंपल वे सेइंग कि आपको एक मॉडल देता है जो खुद ही फिगर आउट कर लेता है बेस्ट क्या है. इन अ वेरी कूल वे ऑफ सेइंग AI खुद AI बताता है कि आपको क्या बेस्ट होना चाहिए. तो मॉडल फॉर मॉडल इन दैट वे. ट्रांसफर लर्निंग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, जैसे आप अगर एक इंसान को देखो, इंसान के पास एक कोर कॉन्सेप्ट हमेशा होता है, राइट. एंड उसी कोर कॉन्सेप्ट से वो नई चीज़ें सीखता है. तो ट्रांसफर लर्निंग बेसिकली है कि गूगल ने बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ विजन अपने मॉडल्स में एम्बेड कर रखा है. तो उसे पता है कि कौन सी चेयर है, कौन सी लाइट है, कौन ह्यूमन है, कौन क्या है, कौन कैमरा है. अब आपको जब ये सब इंफॉर्मेशन बेस में हो, और इसी को हम फाउंडेशन मॉडल कहते हैं बाय द वे, कि जब आप ह्यूमन इंटेलेक्ट या ह्यूमन कॉमन नॉलेज को एम्बेड कर देते हो मॉडल्स में, उसके ऊपर फिर आप अपना बिजनेस स्पेसिफिक यूज केस बता सकते हो. जैसे अगर आप इमेज देखो तो ये वन ऑफ द कस्टमर्स, उनने क्या किया था, उनने क्लेम का, और ये बहुत लोग एक्सपीरियंस कर चुके होंगे अपनी लाइफ में कि जब आप गाड़ी ठोकते हो तो आपको क्लेम की फोटो भेजनी पड़ती है, राइट. एंड ऑल ऑफ यू हैव एक्सपीरियंस दिस कि वो फोटो जाती है और फिर वो कोई मैनुअली बताता है कि अच्छा आपको मैं इतना पैसा दूंगा और इतना ही लगेगा और ये नहीं है. दिस इज एन ऑटोमेशन ऑफ इट, जहाँ पे आप फोटो खींच के खुद भेजते हो और नीचे आंसर आ जाता है कि आपकी ये और आपका क्लेम अमाउंट इतना बनता है. सो दिस इज द ऑटोमेशन. तो आप सोच के देखो, एक तो आपने काम खत्म कर दिया, इतने दिन का वेट, एंड देन इट इज़ मच बेटर स्केलेबल देन अ ह्यूमन जजमेंट, राइट. क्योंकि वहाँ पे आपने देखा है कि कई बार लोग जुगाड़ तुगाड़ करके बड़े बड़े क्लेम ले लेते हैं, बट यहाँ पे आप नहीं कर पाओगे बिकॉज वाई इट्स एन AI सिस्टम. ऑटो स्केल, आप चाहे इसे एक टर्मिनल पे करो, चाहे आप 1 बिलियन टर्मिनल पे करो, ये टेक्नोलॉजी टूटती नहीं है. विच इज़ वाई आई वाज सेइंग इनिशियली कि गूगल के प्रोडक्ट्स की मेन फिलॉसफी हमेशा से वही है कि चाहे 1 बिलियन एक्सपीरियंस और अवेलेबिलिटी सेम होनी चाहिए. तो जब आप ये देख रहे हो, कोई मुझे कोई अच्छा सा एक यूज केस बता सकता है अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए? क्या होता है ANP?
अच्छा, क्यों ट्रैक करना चाहता तू? कॉलेज में लोग आ रहे थे, जनरल क्यूरियोसिटी, मतलब व्हाई डू यू वांट टू ट्रैक? करेक्ट, करेक्ट। ओपन सीवी में तुमने बनाया है या यू आर गिविंग एन एग्जांपल कि बना सकते? अच्छा, वेरी गुड एग्जांपल। सो ओपन सीवी में जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो वो तुम्हें मॉडल करके दे देंगे एज एन एग्जांपल। वेरी गुड, वेरी गुड, नाइस। और कोई? पीछे वाले बैक बेंचर्स, बालकनी आराम से बैठे हैं जो सब, बताएगा कोई? या मैं पिक करना शुरू करूं रैंडमली किसी को? कोई तो हाथ खड़े करो, कोई प्रोजेक्ट आइडिया किसी के दिमाग में विजन को लेके। हाँ, इससे पहले क्या? आई कार्ड रीडर, क्या होगा उससे? ये नहीं करना है। मैंने कहा ना रिस्पॉन्सिबली करना है, सो एज अ कॉलेज स्टूडेंट ये नहीं होने देना है। बट हाँ, इट्स अ गुड यूज केस, विजन एपीआई। ओके, दैट्स अ गुड एग्जांपल। और किसी के दिमाग में कुछ नहीं आ रहा? एक और आया, इससे बात करना, इसके बहुत आइडिया है इस लड़के के पास। हाँ, अच्छा, वो तो नहीं बोला कि मैं कॉलेज के सीसीटीवी वो करना चाहता हूँ, देन तो आई वुड हैव सेड कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, दैट्स अ गुड वन। आइडेंटिफाइंग फेसेस और डेटाबेस में रखना और फिर सडनली मैच करना कि यार ये बंदा तो क्रिमिनल है और इसको तो पकड़ो कहीं पे जहाँ सीसीटीवी में है। आइडियली बहुत खतरनाक यूज केस है, चाइना कर रही है ये। फॉर दोज ऑफ यू डोंट नो, पढ़ना इस बारे में, दिस इज अ यूज केस विच चाइना हैज ऑलरेडी बिल्ड डिप्लॉयड। और वो ऐसे कोविड में दे हैव डन डिफॉल्टर्स का कैच थ्रू दिस ओनली। इट्स अ वेरी सैड थिंग टू सी। बट इसीलिए मैंने पहले कहा था रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है एआई में, क्योंकि आप कर बहुत कुछ सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको करना चाहिए वो, तो ध्यान रखना है इस चीज़ का हमेशा। हाँ, हाँ, हाँ। बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम। और घर पे फोटो भी जाएगी। हाँ, आई वुड नॉट एडवाइज दैट, बट ठीक है। हाँ, करेक्ट, वेरी गुड, दैट्स अ गुड यूज केस। ये भाई गर्लफ्रेंड वाले मत करना यार। सो अगेन, नाउ यू नो देर इज अ टेक्नोलॉजी लाइक दिस। आप सोचो, आप अपने प्रोजेक्ट्स इसके अराउंड बनाओ, अच्छे से आइडियाज ले और सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करो। देखो मैं बहुत सिंपल लॉजिक देता हूँ, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स मत सॉल्व करो, सोशल प्रॉब्लम्स उठाओ जहाँ पे लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे आपका कॉलेज हो चाहे सोसाइटी एट लार्ज हो, और कोशिश करो वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की। राइट, जैसे उसने कहा ब्लाइंड को आप कितनी हेल्प कर सकते हो इन सब चीज़ों से। ट्राई टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम, उससे तुम्हें ही फायदा होगा। मतलब एक तो देखो फायदा है तुम सोसाइटी का कर रहे हो, लेकिन जब तुम सोशल कोई चीजें करते हो तो तुम्हारे रेज्यूमे में तुम्हें ही फायदा होता है। तो इन ऑल वेज गर्लफ्रेंड वाला लिख के तुम्हें फायदा नहीं होगा। ऑल आई कैन से इज दिस। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द एनएलपी एंड डॉक्यूमेंट एआई। व्हाट दिस टेक्नोलॉजी डज, एंड आई एम जस्ट शोइंग यू अ वेरी ब्रीफ ऑफ इट। इसकी इसमें एक नॉलेज होती है कि ये टेक्स्ट की इंटेलिजेंस को पकड़ लेता है कि टेक्स्ट किस बारे में बात कर रहा है, टेक्स्ट में क्या क्या बेसिक फैक्टर्स यूज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें पकड़ लेता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने अगर रिव्यू लिखा और वो पॉजिटिव है तो वो बता देगा कि यार आपको ना बहुत पॉजिटिव रिव्यूज आ रहे हैं। अगर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव बता देगा। वो ये भी बता देगा कि यूज़र क्या नेगेटिव बता रहा है आपके प्रोडक्ट।
that आप उसको improve कर सको. It also tells you things like different entities in the data. So this is also a very important API that you can learn. इसका कोई use case बताएगा document का? हाँ 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 करेक्ट. वेरी गुड, वेरी नाइस. प्लस हमारे अगेन अगर आप कॉलेज के परस्पेक्टिव से सोचो तो आप बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे ग्रेडिंग ऑफ योर असाइनमेंट्स. आप सोच के देखो कितनी सारी चीज़ें आपके प्रोफेसर्स हैव टू गो थ्रू. अगर आप ऐसा सिस्टम बना दो तो दे कैन डू ऑटोमेशन. यस, समरी बना दे. वेरी गुड, दैट्स अ वेरी गुड केस. Okay, good. So I'll skip the forecast. I'll also skip the matching engine. These are all the things which you would not know much at this point, but ठीक है. I'll, like I said, I'll share the presentation. इस presentation में जो जो तुम्हें keywords दिख रहे हैं, कोशिश करो वो चीज़ें learn करने की. Take a screenshot of this. This is a white paper which some of my colleagues have written. ये paper है MLOps की पूरी practices के. Industry में हर जगह ये practice, they use this as a starter to do MLOps, right? So इसमें architectures discuss हैं, इसमें tools and technologies discuss हैं, इसमें discuss किया गया है कि कैसे आप MLOps करते हो. So for those of you who are interested in the machine learning side, आप जाके white paper पढ़ना. Again, just take a screenshot and search for this. It's a very amazing white paper. These are some of the supporting materials. इसमें आपके workflow से related बहुत सारी चीज़ों से related machine learning के courses हैं that you can take a screenshot. अब हम आएंगे कुछ एक इंटरेस्टिंग चीज़ पे. जैसे कि मैंने कहा था, जेन एआई इज समथिंग विच इज कमिंग अप. अभी बहुत लोगों के लिए लॉन्च नहीं है, बट आई गाइस एक्साइटेड टू सी बार्ड. ठीक है, पहले सो वील गो लाइक दिस. आई विल शो यू बार्ड. हम कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पूछेंगे एंड यू टेल मी द प्रॉम्प्ट. आई विल आस्क. अभी ये एक्सेस बाहर नहीं है. कुछ बड़े लोग हैं यहाँ पे जिनने वीपीएन से यूएस से एक्सेस लिया है, विच इज़ गुड. आप उनसे पूछ लेना. देयर इज अ वे ऑफ डूइंग इट. एक बार हाथ खड़े करो जिनने यूएस से वीपीएन से एक्सेस किया है. आई एम नॉट गोना रिपोर्ट, बट आई एम जस्ट सेइंग कि देख लो. दे नो हाउ टू डू. तो अगर आपको चाहिए वो एक्सेस तो आप उन लोगों से बात कर लेना. ठीक है. सो एंड अगेन प्लीज मेक श्योर आप फोटो वीडियो कुछ नहीं ले रहे हो. कुछ मैं देख रहा हूँ पीछे लोग ले रहे हैं. प्लीज मत लो. अगेन आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि आप टेक्नोलॉजीज देखो क्या हो रही है. ये बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है. आप सब देख चुके हो चैट जीपीटी में कि वो क्या कर रहा है. बहुत लोगों को तो यही डर है. एंड आई कैन टेल यू, मैं बहुत सारे फोर्थ से इंटरेक्ट करता हूँ मेंटरशिप प्रोग्राम्स में. सब बहुत परेशान हैं, डरे हुए इन दैट सेंस, क्योंकि उनको लग रहा है कि यार हम सीखें क्या जब सारे आंसर चैट जीपीटी दे देता है. तो फिर हमें लोग हायर क्यों करेंगे. एडेड द इशूज दैट वी आर सीइंग इन रिसेशन, हर जगह जॉब्स जा रही हैं एंड ऑल ऑफ दैट. लोग बड़ा परेशान हैं. तो हमें परेशान नहीं होना है. हमें क्या ध्यान रखना है कि ये टेक्नोलॉजी है, ये अभी हो सकता है. आपको सीखना है ये टेक्नोलॉजी को यूज़ करना टू मेक श्योर दैट आप जो चीज़ें कर रहे हो वो अच्छे से कैसे करो. ठीक है. तो आपकी जॉब्स नहीं जा रही हैं. आपकी जॉब्स अब 30-40% इम्प्रूव हो जाएंगी फास्टर. राइट. चलो, गिव मी अ गुड प्रॉम्प्ट, something which is worth. और हम sorry, just to give a quick thing, we are not going to talk about creative prompts की poem लिखो and all. मैं developer prompts पूछ रहा हूँ. So give me a prompt. मैं एक बताता हूँ. Let me see if I can do. ठीक है. So मैंने एक बहुत simple सा लिखा. Write a Python script that can read news from Apple website and then download the stock data for Apple. Simple सा है. Let's see. Wait. So
So sometimes it blocks you because you're trying to get information which you should not. So just say for example, if you see this also, why do you think this is blocked? So ऐसा नहीं है, इसका answer नहीं है, but this is being blocked. Why? Huh? नहीं, but are you supposed to download news of any company through script? Ideally not, right? But unless you have an API for that, correct? So sometimes you will be blocked. The reason being कि you will not be able to access that news directly. So कई बार ऐसा होता है, and again like I said, this is a very experimental setup. This is not something that you will see finally, and the access that most of the people have outside is also a very different product. So there are things that we have to keep in mind. So let me reset that. So for example, explain why a large language model sometimes make mistake. So you can see that it sort of gives you bunch of things. In fact, you can sort of Google it as well, just in case if you want to. तो इसमें हैं बहुत सारी चीज़ें that you can play out. And again, like I said, I don't have to give too many examples because you've done that experiment with ChatGPT at this point. So most of the things that you can do with ChatGPT, you should be able to do it here. Only except the things which you're not supposed to do. So the difference between Bard and the ChatGPT is very simple, which is things which you're not supposed to do, वो आप यहाँ पे block हो जाएगा. For the reason being कि वो information is not out there, right? So now, would you be able to do anything with this? आप as a developer सोचो तो आपको ये interface चाहिए या आपको कुछ और interface की ज़रूरत पड़ेगी? Anybody? Do you think this is the interface that is good enough for you to do anything? Yeah, you need something else. आप chat पे कोई app बना सकते हो? या आपको API चाहिए होगी? API चाहिए? Just like OpenAI में भी आपके पास API, them were saying कि हमने कुछ build किया है उसको use. तो again, like I said, as a developer, technology कुछ भी हो सकती है, but आप as a developer सीखते क्या हो? API access. So what I'm going to show you now is couple of videos of how this API sort of works. क्योंकि आपका main focus ये है कि आप ये चीज़ें use कैसे करो as a developer. Oh, sorry. One last thing for those of you who are interested in getting a certification, there's a professional ML engineer certificate from GCP. उसकी पूरी पढ़ाई होती है, there's a whole video, there's a whole course that you can go through. वो आपको बिल्कुल basic से advanced लेके जाता है, all these different stages, बिल्कुल free है, except the certificate part. उसके लिए आपको you have to pay to appear for the certificate, and I think $200 or something. But it's a very important certificate if you're trying to get into the other part. So now we'll quickly see two videos, and then I'll shut up. Cloud and AI Summit. We're at the start of a new era of AI innovation. To bring generative AI to enterprises, we introduced two platforms. GenApp Builder is a brand new offering that brings together foundation model with the power of search and conversation AI to enable enterprises to develop new generative AI apps. And Vertex AI is our end-to-end unified ML development and deployment platform, now with its biggest update yet with generative AI support. A range of foundation models are made available to developers and data scientists. Developers benefit from easy API access, and data scientists have a full suite of tuning options for customizing these foundation models. Let's recap the three categories of use cases we saw today. First, when we think about how to make online interaction more conversational, more human-like, and helpful, the potential for improving customer experiences, engagement, and loyalty is immense. Second, the ability to intuitively interact with complex data across sources means you can better enable your teams with business and industry insights. Third, content generation gives people the ability to turn their creative ideas into targeted content rapidly.
This is all made possible by bringing together foundation models, conversation AI, and enterprise search. Our partners are ready to support generative AI at every layer of the stack. Since our launch 2 weeks ago, we have seen such incredible demand from our customers. We ensure enterprise needs are met by providing choices and control, including data isolation and privacy. Private data is kept private. We can't wait to see what Gen apps you're going to build with Google Cloud. So that's all. The other video is something you can go on YouTube and search, which is Build, Tune and Deploy Foundation Model with Generative AI Support. I'll probably share the link, but you can go ahead and watch this. This is a longer one. In this, you actually see the product demo, but what we saw in the previous slide is something which is right now available to very selected testers commercially. But मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा था कि फ्यूचर में ऑल ऑफ यू माइट हैव टू वर्क ऑन दीज टेक्नोलॉजीज़. ये बहुत एक्सपेरिमेंटल हैं, अभी बहुत चीज़ें चलती हैं नहीं चलती हैं, बट इवेंचुअली जब आप लोग यू विल कम टू दी एंटरप्राइज वर्ल्ड, यू विल बी वर्किंग विद दीज टेक्नोलॉजीज. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that you start exploring and investing these in these technologies, और आप सीखना शुरू करो इन सब चीज़ों के बारे में, right? So that's all from my end. Any question, let me know. अच्छा, क्वेश्चन है कि DSA सीखते सीखते टाइम निकल जाता है, तो Yes, sir. MLOps कैसे सीखें? Yes, sir. स्टूडेंट में तो करना पड़ेगा. There's no option. We did the same thing. So for example, if I tell you my personal experience, I've studied both when I applied for Google, so I had to go through the whole DSA plus the MLOps. अब बस फ़र्क ये पड़ता है कि because I was working with MLOps in my previous, easy for me in that sense, but देखो करना पड़ता है, मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते, कॉम्पिटिटिव है एनवायरनमेंट, वी कांट डू मच. बट मैं ये नहीं कह रहा कि MLOps एकदम एक्सपर्ट बन जाओ तुम 10 दिन में या 1 साल में. एटलीस्ट नो फ्यू बिट्स एंड पीसेस जो तुमको ईजिली समझ आते हो. दैट्स ऑल आई एम सेइंग. DSA मत भूलना इज ऑल आई विल से, बिकॉज MLOps में DSA बहुत इंपॉर्टेंट है. ये मैं फिर सबको बता दूँ, जितने लोग यहाँ मशीन लर्निंग में घुसना चाहते हैं, DSA, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड ऑल, एल्गोरिदम्स एंड सिस्टम डिज़ाइन बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि उसके बिना आप MLOps में तो बहुत मुश्किल होती है जाने में. एटलीस्ट जब आप प्रोडक्शन से पे काम करते हो तो फोकस ऑन दैट 70%. Thank you. Thank you. So I'll take one last question and then I'll take questions outside. Sir, as we already know that the ChatGPT type technology is already existent, what kind of things Google Bard do, especially because the thing is already existing. दो तो नहीं कर पाया, which is my failure in that sense. देखो कोई भी LLM मॉडल जितने भी हैं, चाहे सो Amazon also publish there, Facebook का Llama है, सबके काम एक ही है, बिकॉज द फाउंडेशन ऑफ द डेटाज आर सेम एक्सेप्ट 20-30%. आप 1 साल में देखोगे कि सब जितने भी मॉडल्स हैं वो सब एग्जैक्टली वही कर रहे हैं जो सब कर रहे हैं. सो ऐसा डिफरेंस नहीं है. बट मैं हाई लेवल पे बता देता हूँ, टेक्स्ट जनरेशन में आपकी बहुत चीज़ें होती हैं. समराइजेशन होती है, राइटिंग ऑफ द ईमेल्स एंड कोड जनरेशन होता है, क्लासिफिकेशन होता है, सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन होता है. बार्ड में भी ये सारी चीज़ें हैं. आई डिड द वेरी बैड डेमो क्योंकि वो नहीं चल रहा फॉर सम रीज़न, बट यू कैन एक्चुअली गो ऑनलाइन एंड चेक कपल ऑफ वीडियोज़ ऑन यूट्यूब जहाँ पे दे हैव शोन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट. बट लाइक आई सेड, within few months or years, most of the LLMs that are there in the market, kudos to ChatGPT कि वो पहले आ गया, but all the others will give you roughly the same input and output क्योंकि वो foundation same ही है. मतलब वो if you read about it you will understand कि eventually all of them will give the same answer. But something new. So our expectations are very high to Google, that Google made a AI system that beat ChatGPT, because our expectation from Google is very high. ये तो तुम सुंदर को पूछो भाई. ये अपना काम नहीं. So I just wait. That's all I'll say. There are a lot of things which are coming up. Google I/O में there's a lot of announcements which are happening. Just wait. Like I said, देखो, kudos to ChatGPT. They came first. We didn't. उसका reason बहुत simple है, because we know that there are a lot of things that hallucinates when the models are being predicted. So we don't want to take that risk. क्योंकि आप देख रहे हो ChatGPT Bing integration की problems.
all of you, if you are experienced in that, आप देख रहे हो वहाँ कितनी issues आते हैं, problems आती हैं. So we never wanted to do that in the first place. So that's a separate discussion, but just you'll see. Thank you, sir. It's been a wonderful session, especially the part where you can encapsulate the audience after lunch. And as I can see and notice that the mission is accomplished right here. So there's that. Now I take the pleasure to introduce Mr. Jitendra Gupta. He's from Wipro, and his topic of discussion would be Google Cloud Landing Zone design and the best practices. We're glad to have you on board, sir. Thank you.